Today we will start with the topic factorization using identities. ओके ये मेरा टॉपिक रहेगा बच्चे. हम we will perform factorization and we will also use identities. Okay, now what kind of identities we can use in our questions? You know it very well. We have first identity a plus b whole square. Now everybody is open to tell me how we will write this identity, or you can say how we will expand this identity. So A square plus B square plus 2AB. plus B square. B square. Yes, a square plus 2ab plus b square, or someone will suppose this as a square plus b square plus 2ab. One and the same. Now come on to next one. A minus b whole square. Okay, so we will write it as a square minus 2ab plus b square, or you can say by rearranging you can write it as a square plus b square minus 2ab. One and the same thing. Okay, and the third one, which is very important for our factorization, is a minus b and a plus b. This is the most important property as far as factorization is concerned, and we can write this one as a square minus b square. तो बच्चे ये थ्री आइडेंटिटीज हैं जिनको हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ओके, एंड इफ यू नो दीज थ्री आइडेंटिटीज तो आपके पास फैक्टराइजेशन बड़े आराम से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ factorization by using identities. Now check it how we will solve certain questions. See that here is x square plus 8x and plus 16. Someone asked us to factorize this. ठीक, तो बच्चे सबसे पहले तो आपने इस टर्म में ये देखना है दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही थी. क्वाड्रेटिक मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री. हियर वी हैव थ्री टर्म्स 1 2 एंड 3. ओके, तो सबसे पहले ये चली. ठीक, अब अगर इसमें थ्री टर्म्स हैं, देखो इसमें कितनी टर्म्स है बच्चे, 1 and 1 2 टर्म्स हैं. इसमें आइडेंटिटी में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. एंड इन दिस आइडेंटिटी देयर इज आल्सो 3 टर्म्स. तो वी कैन से दैट कि थर्ड आइडेंटिटी तो इस पे फिट नहीं बैठी, बिकॉज इन थर्ड आइडेंटिटी वी हैव ओनली 2 टर्म्स. तो इसका मतलब इसमें दो आइडेंटिटीज लगेंगी. कौन कौन सी, या तो फर्स्ट लगेगी या क्या लगेगी, सेकंड लगेगी. अब उसको भी हम न्यूट्रलाइज करते हैं बच्चे. ठीक, अब उसको कैसे चेकआउट करेंगे, सी दैट इन सेकंड आइडेंटिटी यू विल सी फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, second term is positive, but one term is negative. But in our case we have all the three terms are positive. इसका मतलब इसमें कौन सी आइडेंटिटी चलेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी चलेगी. अब एक चीज और देखिए बच्चे, यहां a और b सेपरेट टर्म्स हैं, और ये मिडिल वाली टर्म a और b का क्या है, मिक्सचर है. देखिए क्या होगा, I can write x as x square, I can write 16 as 4 square, और ये लीजिए बच्चे 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 into x. तो इफ यू विल सी, तो यू विल फाइंड इट लाइक दिस वे कि ये आपका a हो गया, ये आपका a into b हो गया मल्टीप्लाइड विद 2, और ये आपके b का स्क्वायर हो गया.
तो I can simply write it as x plus 4 whole square. So this is the way we can design a factorization. Okay? और किस चीज का यूज किया हमने? फैक्टराइजेशन का, कि हाउ वी कैन solve this question by using factorization. Okay? हाँ जी, आगे मूव करते हैं. Let us start with the next one. Suppose that we have this question: 4y square minus 12y plus 9. अच्छा, अब बताइए, आप सब मेरे को बताएंगे which identity will be used here. First one is a plus b whole square, second one is a minus b whole square, and third one is a minus b and a plus b, which is equal to a square minus b square. तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. देखो, थर्ड तो पहले ही कैंसिल होगी because it contain only two terms. Very good, बहुत अच्छे. So we will use second identity. Now why we will use second identity? Because here is one term which contain negative value. Very good. Okay, तो अब हमने इसको परफेक्ट करना है बच्चे. देखिए कैसे होता है. This 4y, इसको ध्यान से देखो. This 4y can be written as 2y whole square. बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और y का क्या बन जाता है? 4y. नाउ माइनस, इसको ऐसे छोड़ दो. नाउ दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. नाउ माइनस 12y, माइनस 12y कैन बी रिटन एज 2. देखो, फर्स्ट टर्म 4y, sorry 2y, and last term 3. 3 into 2 6, 6 into 2 12. So I can say we will easily write it as minus 2 into y into 3. So find it in a unique way. A square, this is b square, and if you will check that, it becomes 2 times a into b. That means it will following this identity. So we can write it as 2y minus 3 whole square. This is the factorization. बच्चे, इसको मैं आपको और भी एक और मेथड से भी सिखाऊंगा कि हाउ वी विल मेक द फैक्टर्स. तो वो भी देखिएगा. पहले एक बार इसको देख लीजिएगा. ठीक. नेक्स्ट वन, 49 p स्क्वायर माइनस 36. हाँ जी, अब आप मेरे को बताएंगे विच आइडेंटिटी विल बी एप्लीकेबल हेयर. Third one. Two. Second one. Second one. It is not a second one. Third one. Check कीजिए. One term. Here is second term. एक फर्स्ट है और एक क्या है? सेकंड है. तो how we will write it? We can write it as 49p square can be written as 7p square. Whole square create करो. 36 can be written as 6 square. Okay, so it is a square minus b square, which can be written as a minus b and a plus b. ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है. बिकॉज ठीक है, इस आइडेंटिटी में हम क्या यूज करते थे?
a square minus b square can be written as a plus b and a minus b, और इससे ये बनता है। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। हो जाएगा ना। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, इफ इट इज m पावर 4 माइनस 256, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आप इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में जनरेट भी करें। देखिए कैसे जनरेट करें, चेक इट बच्चे। m पावर 4, तो दिस m पावर 4 कैन बी रिटन एज m स्क्वायर होल स्क्वायर। 256 कैन बी रिटन एज 16 स्क्वायर। तो आप एक चीज चेक कीजिए बच्चे, here is m square, here is 16 square. It can be written as, देखिए ये a square minus b square हो गया, which can be written as a minus b, and second term can be written as a square plus b. लिख सकते हैं ना बच्चे। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अब चेक करो, m स्क्वायर माइनस 16, इसको हम क्या लिखेंगे, चेक कीजिए। m स्क्वायर माइनस 16 का आंसर क्या होगा, 4 स्क्वायर। ओके, फिर से ये फॉर्मूला डेवलप हो गया बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फिर से सेपरेट कर दो, तो वी कैन सेपरेट इट एज m माइनस 4 and m plus 4. So now this quantity can further be divided into format which is known as m minus 4 and m plus 4, and here is m square plus 16. This is the way we can try a factorization. बच्चे फैक्टराइजेशन आगे आगे क्या होती जाती है, मूव करती जाती है, ठीक। Got it? Yes, Sanjana. Sir, there's one more 16, right, sir? Why can't we write it as 4 Yes, square? yes. We know that we have a identity based on a square minus b square. But if you will check this question, you will find that here is a square plus b square. We cannot further factorize this one. Got my point? That's why we can not factorize this one. Okay? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। एक और फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं किस तरह से करनी है, या किस तरह की आइडेंटिटीज को हम यूज करें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ना हमारे पास ऐसे होते हैं विच आर मे बी इजी मे बी डिफिकल्ट, डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। चेक कीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर minus c square. See this one. हाँ जी, टेल मी, ये तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ना बच्चे। इफ यू सी दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड ये आपके क्वेश्चन की क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, विच कैन बी रिटन एज a minus b whole square. चेक कीजिए, which can be written as a minus b whole square, and this quantity can be written as c square. अब देखिए, इंटरेस्टिंग फीचर विल कम राइट नाउ। सपोज दिस एज अ सिंगल क्वांटिटी,
and this one is another single quantity. So you can say this is x square and this is y square. बच्चे फिर से देख लीजिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, we will again apply the identity. Let us suppose this whole one as x and this whole one as y. तो ये क्या बन रहा है, x square minus y square, which can be written as x minus y and x plus y. तो चेक कीजिए, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, a minus b plus c, and this can be written as a minus b minus c. ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया. और टोटली वी कैन यूज द आइडेंटिटीज, और कुछ भी नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को इसमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड देन वी विल फाइंड इट और वी कैन सॉल्व इट इन अनदर. गॉट इट. चलिए आगे मूव करते हैं. तो ये भी आपके पास आपकी फैक्टराइजेशन का एक पार्ट था, वेयर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. बिल्कुल बच्चे, ये एक्सपोनेंट की तरह ही है, बिल्कुल एक्सपोनेंट में भी हम करते थे, बट इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एक्सपोनेंट. अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज आइडेंटिटीज, हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दूसरा देखिए बच्चे, सेकंड आइडेंटिटी विच वी आर यूजिंग हियर, a माइनस b होल स्क्वायर, which can be written as a square minus 2ab plus b square, and third entity is a minus b and a plus b, which is known as a square minus b square. चेक कर लीजिए बच्चे, तो ये हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटीज थी which we will use it. ओके, अब एक आइडेंटिटी हम और कर रहे हैं which is quite interesting, x plus a and x plus b. और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी के बिना भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो भी बताऊंगा. देखिए, इफ आई मल्टीप्लाई x with x, it becomes x square. If I multiply x with a, it becomes ax. If we multiply a with x, sorry, यहां b करना था बच्चे, मैं थोड़ा सा गलती कर गया. एक बार चेक कीजिए, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूं. Check it. We have x plus a and x plus b. If I multiply x with x, it becomes x square. If I multiply a with x, it becomes ax. If I multiply x with b, it becomes bx. If I multiply a with b, it becomes ab. नोट किया जाए बच्चे, ठीक. अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे साथ आ रहा है, एक्स स्क्वायर, दिस इज ए बी, एक्स आप कॉमन कर लो तो व्हाट इज लेफ्ट, एंड हियर इज, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन फॉर्म. और इस फैक्टराइजेशन फॉर्म को हम आगे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. और आगे यूटिलाइज करने का मीनिंग हमारे पास क्या होगा कि हम इसको फर्दर किस तरह से सॉल्व करें. अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो मैं क्वेश्चन इस आइडेंटिटीज के साथ सॉल्व करूं, लेट अस सपोज दिस इज रिटन टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. बच्चे, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोल देते हैं. तो आई थिंक मैं जब आपको सिखाऊंगा तो वी विल डू इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ठीक, तो उसको कैसे सॉल्व करें.
ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नीट। देखिए जो भी x के साथ कंपोनेंट लगा हुआ है उसमें हमने a प्लस बी करना है, और नेक्स्ट देखिए उस a प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बच्चे कि हमें इसमें चाहिए a प्लस बी की वैल्यू 5, और अगर मैं कंपेयर करूं a और b की वैल्यू कितनी चाहिए 6। हाँ जी, आप में से कोई भी बताए कि हम a और b की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? 3 and 2. 3 and 2। हाँ, you will take it as 3 and 2 or you will take it as 2 and 3। तो we will simply write it as x square 3 plus 2x plus 6। और बच्चे इसके फैक्टर क्या थे? x plus 3 and x plus 2। That is a very very simple notation which we are using। That's great। और इसी में एक और आते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इसका एक और बताऊंगा बच्चे, डोंट वरी। थोड़ा सा ये लगेगा आपको कि वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। हाँ जी, एनीबॉडी? बिल्कुल उसी तरह से ब्रेक करना है। देखो आपको क्या चाहिए, a प्लस बी शुड बी -7, और a इंटू बी की वैल्यू क्या चाहिए आपको 12। तो हाउ वी विल डिवाइड दिस टर्म? बड़ा सिंपल सा है बच्चे। यस या? Yes, sir. हम्म, Sir, like in this, we can write in the next step we can write y square as it is. Then we can take then we can take -3 -4 like that into y. हम्म। Yes, sir. And from there 3 into 4 it can be 12. देखो हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। वी कैन सिंपली राइट इट एज -3 एंड -4, -3 एंड -4। इट्स आंसर इज -7, एंड -3 इंटू -4, इट्स आंसर इज क्या लिखेंगे? +12। तो हम इसको बड़े सिंपल वे में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर -3y -4y +12। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि a is equal to -3 and b is equal to -4। तो we can simply write it as x -3 and x -4। तो ये भी इसमें क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊंगा। ये तो आप आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपको इस चीज के बारे में नहीं पता चलता, चलिए ये तो आपको ब्रेक करना ही होगा। तो इसका एक और इंटरेस्टिंग वे देखिए, जो हमने पहले भी ट्राई किया था। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से दिखा रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को, फिर इसको करेंगे, चेक कीजिए। तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x। इसको बच्चे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ देखिए देखिए, दोबारा लिख रहा हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी हमने ये करना है कि a प्लस बी शुड बी 5 एंड a इंटू बी बी 6। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, इट विल बी 2x एंड 3x। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद होता है बच्चे इनका ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मींस फर्स्ट टू का ग्रुप कर लीजिए एंड सेकंड टू का ग्रुप कर लीजिए। फर्स्ट टू के ग्रुप में देखिए व्हाट मैक्सिमम थिंग विल वी कैन टेक इट एज कॉमन। तो आप x कॉमन ले सकते हैं, तो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2। नाउ नेक्स्ट में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यू आर लेफ्ट विद x प्लस 2। एंड आपको इस चीज में अवेयर रहना बच्चे कि आपके ये जो दोनों फैक्टर हैं, इट शुड रिमेन सेम।
ठीक, अब आप देखिए जो मैंने ग्रीन पोर्शन किया उसको कॉमन ले लीजिए, x plus 2 from this and x plus 2 from this and you are left with x plus 3। सेम आपका क्वेश्चन आ गया। इसको हम बोलते हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, यस लक्ष्य। Sir, I just raised hand for answering the question. थैंक यू। अब दूसरा ये वी कैन, देखिए अभी अभी हमने स्प्लिट किया था कि वी कैन राइट इट एज -3 एंड -4। तो देखिए ये क्या होगा, वाई स्क्वायर -3y -4y प्लस 12। चेक इट अगेन, मेक द ग्रुपिंग। आपने फर्स्ट 2 टर्म की ग्रुपिंग की, फिर क्या हुआ, आपने सेकंड 2 टर्म की ग्रुपिंग की, ठीक। फिर से देखिए फर्स्ट टर्म की ग्रुपिंग हो गई, सेकंड टर्म की क्या होगी बच्चे, ग्रुपिंग होगी। तो इसके बाद ये क्या होने वाला है, या हम ऐसा कह लें कि इसके बाद हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करें, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी कैन टेक y एज कॉमन, तो लेफ्ट विद y -3। बच्चे इंटरेस्टिंग चीज जो होने वाली है ये वाली देखिए, अगर मैं इसको लिखूं तो आई कैन राइट इट एज -4 into y प्लस दिस 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3। और आगे देखिए ये है -4 और ये है 4, टेक -4 एज कॉमन, -4 जानबूझ के ले रहा हूं, वी आर लेफ्ट विद y -3। अब ऐसा क्यों किया गया, वी विल डू दिस बिकॉज वी नीड y -3 here and y -3 here। Take y -3 as common। y -3 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, we are left with y -4। This is the way we can solve the question। किसी को डाउट हो बच्चे, ओके चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस में करते हैं। तो देखिए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी और बाय अनदर वे, चेक इट, 3m² प्लस 9m प्लस 6। बच्चे सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज जो आपने करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस वन, कि आपके पास कोई ऐसी टर्म तो नहीं आ रही विच कैन बी टेकन एज कॉमन, जो हम सभी में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सी दिस 3m² 9m and here is 6। तो आप बच्चे चेक कर रहे होंगे कि we can take 3 as common, तो here is m² plus 3m plus 2। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग, आपको क्या चाहिए बच्चे, a plus b should be 3 and a into b is equal to 2। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, आप सीधी सीधी गैस कर सकते हैं, a की वैल्यू 2 रख दीजिए, b की वैल्यू क्या रख दीजिए 1, या a की वैल्यू 1 रख दीजिए और b की वैल्यू क्या रख दीजिए 2। तो वी कैन राइट इट एज m² प्लस 1m प्लस
2m प्लस 2। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बता रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप अगर आइडेंटिटी के साथ करेंगे बच्चे तो ये बड़ा क्वाइट ऑब्वियस था कि यहीं से आइडेंटिटी बन जाएगी। 3 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m प्लस 2, which can be written as 3 times m plus 1 m plus 2। अब चेक कीजिए 3। नाउ फर्स्ट टू पार्ट्स, क्या लिखना है बच्चे? m, क्या हो जाएगा? m plus 1। Now in the next two parts, take 2 as common. Three times, देखो m plus 1 and m plus 1, इनको कॉमन ले लीजिए and left with m plus 2. This is the way we can solve it. Okay, अब आपको इनमें से कोई भी मेथड पसंद हो दोनों में से, तो you will take it as। हाँ जी, लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अभी आपसे हेल्प लूंगा कि हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। कोई भी बच्चा जो मेरे को बताना चाहे कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। हाँ जी, एनीबॉडी? सर मैं बस करने चाहता हूँ। अमन मुझसे कहा है मेरे को छूटी है। यस बच्चों, हाँ जी, एनीबॉडी? यस संजना? Sir, so we can take 7 as common. हाँ, देखो सिंपली यू विल राइट इट एज 7p स्क्वायर। You can write 21 as 7 into 3 q square. Now what you can take 7 as common. तो जैसे ही आप 7 कॉमन करेंगे तो you will take it as p square plus 3q square। अब देखो इसके आगे कोई भी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है because here is a positive sign. We are right, अनूपजोत? Yes, sir. हाँ, अगर यहाँ पे कुछ माइनस वगैरह का साइन होता देन वी विल थिंक अबाउट दैट, बट अभी क्योंकि प्लस, ठीक, तो हम इसको एज इट इज ही रखें। Yes, sir. ओके, तो वी कैन राइट इट एज 7p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। इसी फॉर्मेशन में एक और क्वेश्चन सभी के लिए, हाउ वी विल सॉल्व इट। 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया करो कि
कहां से कुछ कॉमन लेना है? यस, देखिए चेक कीजिए हाउ वी विल सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। टू, देखो x इंटू एक्स प्लस टू, ये मैं सिंपल लिख रहा हूं बच्चे, y इंटू वाई, एंड इन द लास्ट वी कैन राइट 2x इंटू जेड। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास। टेक वट एवर यू विल टेक इट एज कॉमन, 2 2 एंड 2, तो 2 इज कॉमन, x x x एज कॉमन, तो वी विल टेक x एज कॉमन, तो 2x कॉमन आ गया। यस, लक्ष्य, नितिका, वेरी गुड। Yes, sir. Sir, after this we will write x square plus y square plus z square. That is the simple answer. Got it? तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, अब इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं फैक्टराइजेशन में। इफ somebody ask you how will you factorize this, टेन ए बी प्लस 4a प्लस 5। देखिए कहीं पे हमें रीग्रुपिंग भी करनी पड़ सकती है, ठीक, जैसे मैं इस क्वेश्चन में करूंगा, मतलब ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग नहीं, सॉरी, ग्रुपिंग। ओके, चेक कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, तो फर्स्ट में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? वन थिंग इज ए, और 10 को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू टू ए बी। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू टू। तो आप कॉमन करेंगे 2 एंड 2, ए एंड ए, what is left? 5b प्लस 2। तो बच्चे फर्स्ट 2 में से आप कॉमन कीजिए 2a एंड वी आर लेफ्ट विद 5b प्लस 2। अब नेक्स्ट थिंग नोटिस कीजिए बच्चे, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता 5b प्लस 2 में से, बट वी कैन टेक 1 एज कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद 5b प्लस 2। और मैंने जैसा आपको कहा था बच्चे, अब चेक करो, यू विल फाइंड समथिंग कॉमन इन टू टर्म्स, 5b प्लस 2 एंड दिस 5b प्लस 2। तो 5b प्लस 2 को क्या कर लीजिए, अगेन टेक इट एज कॉमन, एंड टू ए प्लस 1, and this is the factorization form. ठीक, now come on to next formation. अब जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 25 m स्क्वायर प्लस 30 m एंड प्लस 9। हाँ बच्चे, इसको किसी तरह से भी ग्रुप किया जा सकता है, इसको रीग्रुप किया जा सकता है, इसको और इसको रीग्रुप कर लो, इसको और इसको रीग्रुप कर लो, तो जो आपको ठीक लगे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो कहीं कहीं पे आइडेंटिटी भी यूजफुल हो जाती है। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी, 3 टर्म्स
all the three terms are positive. So I can write 25m square as 5m square. किसी को ये डाउट तो नहीं मैंने कैसे लिख दिया? Because 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 and m का स्क्वायर क्या होता है? This one. Next, second term को भी मैं छोड़ लेता हूं. This 9 can be written as 3 square. बच्चे अगर आप 30 के फैक्टर बनाएंगे तो it will be 2, 3 and 5. चेक कर लीजिए. तो I can write this 30 as 2, 5m and 3. और देखिए ये हमारा कौन सा फैक्टर आइडेंटिटी हो गया? a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2a and b, which can be written as 5m plus 3 whole square. Which is the way we can do a factorization. अच्छा, इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन में आ जाए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. हाँ, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे या सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ये लिखा गया 49 y स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर. तो हाउ वी विल सॉल्व इट? चलिए, पहली बात तो देखिए बच्चे, कैन वी टेक समथिंग कॉमन? तो आप देख रहे हैं 49 वाई स्क्वायर, 84 वाई जेड एंड 36 जेड स्क्वायर. इसमें डायरेक्टली तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा. हाँ, वेरी गुड संजना, बट वी कैन टेक. अब देखिए कैसे चलना होता है क्वेश्चन. दिस 49 कैन बी रिटन एज 7 वाई स्क्वायर. दिस 36 कैन बी रिटन एज 6 जेड स्क्वायर. और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है बच्चे कि दिस 84 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 7y एंड 6z. और आपका यहाँ पे टारगेट पूरा हो गया बच्चे, आइडेंटिटी वाला. a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2 टाइम्स a एंड b. तो विच कैन बी रिटन एज 7y प्लस 6z होल स्क्वायर. ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, जिसको हम यहां पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. 7y प्लस 6 z. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे, जिनको हमने इन आइडेंटिटीज की हेल्प के साथ क्या किया, सॉल्व किया. These identity and one more this one. फिर से एक बार देख लीजिए. 4 questions type 3 identities are this one and 1 identity is this one. और इसके लिए हमने एक और भी मेथड अप्लाई किया, splitting the middle term. Okay, and I hope आपको जल्दी से समझ लीजिए. Yes, sir. Sir, how can we know that where we have to use which method? बच्चे वही तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द पॉलिनोमियल. और पॉलिनोमियल में देखो मैंने ये कहा था कि इफ ऑल द 3 टर्म्स आर पॉजिटिव तो आप इस आइडेंटिटी के साथ जाएंगे. इफ वन टर्म इज नेगेटिव आप इस आइडेंटिटी के साथ जाएंगे. और अगर आपके पास क्या है, 2 टर्म्स हैं तो आप थर्ड के साथ जाएंगे. और एक चीज और, अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट फाइंड आउट तो फिर आपके पास फोर्थ में तो फिट होएगा ही होएगा. No, sir, like splitting the middle term and regrouping.
How can we know? हाँ बच्चे, if you have more than 3 terms तो follow the grouping of terms. अब देखो grouping of terms का फंडा ही 4 में आएगा ना. ग्रुप कब बनेंगे? 2+2 का ग्रुप बनेगा या 3+3 का ग्रुप बनेगा. तो जब आपके पास 4 terms are there तो go ahead with grouping. अच्छा, grouping में अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो regroup it. Okay, thank you. That's all for the day.